gaseous particles that is their kinetic energy with the macroscopic parameters such as pressure, temperature, etc., including ideal gas law, including ideal gas law and diffusion expression was developed. This is known as kinetic theory in gases. Now, the next thing is we need to know some obviously theory है तो it will have some assumptions, some basic assumptions which need not be derived, known as postulates of the theory. So postulates of KTG. It assumes certain basic things, and those basic things are like this. It says that the gaseous particles tiny and they are hemispherical masses and they are all identical for same gas, whereas particles of different gases
masses are different. Point B में the gaseous particles behave as point masses. That is, the actual volume of gaseous particle is quite small, almost negligible compared to the empty space or free space, or free space available for its movement, or free space available for it. फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर इट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? जैसे अगर ये पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इसमें इसकी वॉल्यूम जो है मान लो 500 सीसी है, ठीक है, और इसमें 1000 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो पर पार्टिकल कितना स्पेस हुआ? 0.5 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो है वो मान लो 10 to the power minus 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दैट इज उसका रेडियस, खुद का रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर्स है, यानी नैनोमीटर, फ्यू नैनोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर्स के ही रेंज में उनका रहता है साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये अगर उसका रेडियस है और उसको वॉल्यूम मिला है घूमने के लिए 0.5 सीसी, तो उसके साइज के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम जो उसको मिला है दैट इज टू लार्ज, राइट? Isn't it? Therefore, they are behaving as a point masses. It's like और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम रेडियस है 1 सेंटीमीटर और उसको घूमने के लिए जगह मिला है 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 1000 मीटर क्यूब, राइट? 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो उसके साइज के कंपैरिजन में जो उसको एरिया वॉल्यूम मिला घूमने के लिए दैट इज टू लार्ज, टू इनॉर्मस. This makes sure that this particle will be least bothered or least interacted with any other particle at any point of time. Is that okay? Clear है? Yes. Okay.
or the effect of gravity on these point masses have almost no almost nil. बेसिकली होता ये है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन इन पार्टिकल के पास ऑलरेडी रहता है और इनका मास छोटा होने की वजह से जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से इन पे लग रहा होता है, ये दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेविटी फोर्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज ऑलमोस्ट निल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये मॉलिक्यूलर ये फोर्स जो होता है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। इज दैट ओके? These point masses have almost nil effect due to their very low individual mass and high kinetic energy. ठीक है, नेक्स्ट वन इज the gaseous particles exhibit continuous and rapid and random rectilinear motion. Rectilinear motion also during their motion they collide with other gaseous particles or with the wall of container in perfectly elastic manner.
perfectly elastic ठीक है. So the collisions are going to be perfectly elastic, whether among themselves or with the wall of the container. The elastic collision with walls or the collision of these particles with with यहाँ पे नोट किया आसना आपने. अच्छा इसके बाद का ना, तो वो तो अभी लिखा नहीं है. collision of these particles with the wall is the source of pressure. Is the source of pressure in the gas. अब just एक छोटी सी चीज, we know that there is atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर का प्रेशर होता है, ठीक है, which we call atmospheric pressure. और यहाँ पर बोला जा रहा है इस थ्योरी के अंदर में कि आइडियल गैसेस में वॉल के साथ कोलिजन होगा तो भी प्रेशर होगा, नहीं तो प्रेशर नहीं होगा. द ओनली सोर्स ऑफ प्रेशर इज कोलिजन विद द वॉल, राइट. अब वॉल तो अर्थ के आजू बाजू में है नहीं, फिर प्रेशर कहाँ से आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आ गया? हाँ, एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस पार्टिकल्स है. वो कोलाइड किसके साथ कर रहे हैं कि प्रेशर आ गया? वो आइडियल गैसेस ही है ना, उनको आइडियल गैस कंसिडर करके तो प्रेशर निकालते हैं हम लोग, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो प्रेशर नहीं बनता है. द ओनली सोर्स ऑफ प्रेशर इज व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स क्या है? दे आर जस्ट गैसेस. ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कैसे करेगा? ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है. तो काइनेटिक थ्योरी के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं. ये तो ये हो जाएगा. हाँ, सोचो, यही तो मैं चाहता हूँ. सोचो, ये तो क्वेश्चन भी पूछता. यस आसना, यू थिंक, यू टू थिंक.
बिल्कुल, अगर वैक्यूम होगा तो वो तो खाली जगह है ना, उधर तो चला जाएगा। हाँ, वो एक बॉल है, खाली जगह बॉल कैसे हो सकता है? सन तक जाता है गैसेस पार्टिकल और फिर आता है नीचे अर्थ पे। सही है, सन उसको एनर्जी देता है। अर्थ का सरफेस इज द बॉल। पानी का सरफेस इज द बॉल। अंदर चला जाएगा तो सारे का सारा अंदर थोड़ी चला जाएगा, कुछ ही जाएगा ना, जो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो इंटरेक्ट नहीं करेगा। The force of attraction or force of interaction between the gaseous particles is negligible. Not negligible, is null. ठीक है, F the average kinetic energy of a gas sample depends only upon absolute temperature. That is, average kinetic energy is directly proportional to T absolute. However, different gaseous particles may have different kinetic energy. This is not exactly G point या फिर F point को ही मैं थोड़ा सा और elaborative कर दूँ. There was another theory by Maxwell, ठीक है, that's called Maxwell's Boltzmann distribution curve, ठीक है, और there are multiple distribution curves which are prevalent in physical studies. One of them is Maxwell's Boltzmann distribution. Then we have direct distribution. Then we have Einstein-Bose distribution. ठीक है, ये जनरली तीन इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉलो करते हैं. मोर और लेस लगभग सारे मॉडल्स जो भी मॉडल्स हैं हमारे अभी तक के डेवलप, इंक्लूडिंग क्वांटम्स के, उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो इन्हीं तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हुए पाए गए हैं.
ठीक है। और उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है Maxwell's-Boltzmann distribution is what we are going to refer. The gaseous particles follows this particular distribution. और वो डिस्ट्रीब्यूशन से ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का जो आइडिया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको कि वो वेरिएशन का रिलेशनशिप क्या रहेगा, ठीक है, कितने पार्टिकल्स कितना काइनेटिक एनर्जी कैरी करेंगे, इसका एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये एक्सप्रेशन या मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये चीज बताएगा कितने पार्टिकल्स या कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल आर हैविंग व्हाट रेंज ऑफ एनर्जी. Is that okay? So may have different kinetic energy. The distribution of kinetic energy and fraction of particles possessing them is explained with the help of Maxwell's Boltzmann distribution. ठीक है. What is this curve and is what we are going to discuss now. So इसमें दो तीन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है. एक तो पहले मैं जनरल कर्व बताऊंगा, ठीक है, और दूसरा चीज उसका एक्सप्रेशन बताऊंगा. This distribution was postulated in year 1860. This looks something like this. I'll draw it. I will then delta n by n और इधर होता है काइनेटिक एनर्जी. तो looks something like a bell. ठीक है. This is how it looks like. This gives कि अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ये है, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो रहेगा वो कितना रहेगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले कितने रहेंगे, ये इतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे. हाँ, डेल्टा एन बाई एन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स possessing a particular amount of kinetic energy. ठीक है. और ये पूरा फ्रैक्शन जो होगा ये इंफिनिटी तक अगर मैं इसका समेशन लूंगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, यूनिटी, राइट, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन क्या रहेगा, सारे फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो इट शुड ऐड अप टू 1. सो द एरिया अंडर दिस कर्व इज
इक्वल टू 1 और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का यही रूल होता है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें डिफाइंड है। जैसे सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स वगैरह को पढ़ा होगा हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में, नॉर्मल वाला, ठीक है। और व्हाट विल बी दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस चीज को करस्पॉन्ड करेगा, ये हाईएस्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन और which coherently displays a singular kinetic energy, ठीक है। मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई एक सिंगुलर काइनेटिक एनर्जी दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। नहीं, सारे पार्टिकल्स तो यहाँ से लेकर के वो सारे पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट उसी टाइप का है। और थोड़ा सा मुझे और एलैबोरेट करने दो। बेसिकली बोलने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज बीइंग डिस्प्लेड बाय फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स which is maximum in number, ठीक है। जैसे इससे कम इस वाले को देखेंगे तो ये भी एक सिंगुलर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो अगर मैं बोलता हूँ 5 यूनिट्स है, ठीक है, और ये 4 यूनिट्स है, तो 4 यूनिट शो करने वाले कितने, 4 यूनिट ऑफ एनर्जी शो करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं इसमें, जो कि कम है 5 यूनिट शो करने वाले से। और 6 यूनिट यहाँ पर है, 7 यूनिट यहाँ पर है, तो बाकी कोई भी यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी शो करने वाले पार्टिकल्स का जो फ्रैक्शन काउंट है दैट इज लेस देन या 5 यूनिट एनर्जी से ज्यादा या कम कोई भी एनर्जी पिक करते हैं, इसके अलावा कोई भी एनर्जी पिक करते हैं हम, उसको शो करने वाले फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है दे आर लेसर देन द पार्टिकल और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स शोइंग 5 यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है आज ना? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? Have you ever heard of it? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हम लोग पढ़ा करते थे 10th वगैरह में, तो हम लोग दो तीन चीजें पढ़ते थे। मोड, ठीक है, मोड इज व्हाट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो शो करता है, और मोड का मतलब ये भी होता है कि इट इज मोस्ट प्रोबेबल, राइट? नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी is most probable kinetic energy. Are we getting this point? This max asna? Yes, sir. Most probable kinetic. Yes, most probable kinetic energy. और इस most probable kinetic energy के corresponding जो velocity आती है, हर पार्टिकल का मास सेम है क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आएगी दैट वेलोसिटी इज रेफर्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी mp। इज दैट ओके? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ यहां पर दो चीजें और भी डिफाइंड होती हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी and there is something called as root mean square velocity, ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
ठीक है। और एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या एसेंस है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है VRMS, दैट करस्पॉन्ड्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड कर दिया और उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दिया, तो पर पार्टिकल एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल गया, उसके मास से उसको डिवाइड कर दिया उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, देन आई एम गोइंग टू हैव द वेलोसिटी का स्क्वायर, और उस स्क्वायर का मतलब उस चीज का उस क्वांटिटी का रूट ले लिया तो आई हैव VRMS, ठीक है। व्हाट आई सेड इज सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें हम लोग, K1 K2 K2 K3 K4 K5 Kn, ठीक है। दैट इज हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर, ठीक है, अप टू हाफ mvn स्क्वायर। इन सबको अगर मैंने डिवाइड कर दिया n से, विच इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ इंटू मास इंटू सम v डैश का स्क्वायर हो जाएगा। एक ऐसी वेलोसिटी एक पार्टिकल के पास जो इस चीज को, इस एवरेज को परफेक्टली अप्रोक्सीमेट कर पाए। एम आई मेकिंग सेंस? नाउ दिस इज नोन एज, इस हाफ एम को दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो v डैश स्क्वायर एक सेकेंड में डैमेज कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। नो सर। और तीसरी चीज जो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VRMS स्पीड इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा जो रेफरेंस लेते हैं वो होता है V एवरेज का। बट VRMS से वो तो वेलोसिटी, हाँ, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये आता कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, द सोर्स इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ऊपर है वो मोस्ट प्रोबेबल के है वो इक्वल टू VNP। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल KE से हमको VNP आता है। हाँ, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम्स फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी से VRMS आता है, और तीसरी चीज जो होती है वो है V एवरेज। V एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज और ऑल द स्पीड्स डिवाइडेड बाय m। अब इसका कुछ बहुत ज्यादा सेंस नहीं होता है, जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस हमने इसको बना के रखा हुआ है। इज दैट ओके? ये लाई कहां करते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट V मतलब वैल्यूज वगैरह निकाल के ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया है, वैल्यूज निकाल करके हमने ये देखा, और कैसे निकालते हैं वो कैसे नहीं, एक्सप्रेशन क्या होता है सिर्फ वो बता दूंगा, डेरिवेशन नहीं सीखना है। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ऑर्डर जो होता है वो यही रहता है, दिस इज V एवरेज, ठीक है। ये वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी रहता है ये यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और आखिरी चीज जो है हमारा वो है VRMS, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू
RMS और एवरेज। सो ये मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल, और ये काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू बी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू बी एवरेज। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होएगा हमेशा? VRMS, उससे छोटा वी एवरेज और उससे छोटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी में मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वी एवरेज, and that will be lesser than average kinetic energy. Average kinetic energy will be greatest, most probable will be smallest, and kinetic energy corresponding to V average will lie in between. Is that okay? Clear है? काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू V average हो तो VRMS के इक्वल ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों बराबर क्यों होंगे? इंडिविजुअल वेलोसिटी का स्क्वायर करके एवरेज लेंगे और एवरेज का स्क्वायर करेंगे, वो दोनों बराबर कैसे होगा? हाँ, वी एवरेज इज वेलोसिटीज का एवरेज, हाँ उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गिव द एक्सप्रेशंस फॉर and then we will move on to again the derivation of kinetic energy. ये बेसिकली हमको चाहिए होता है फॉर डेरिवेशंस। KT वैसे PV is equal to nRT के डिस्ट्रीब्यूशन, PV is equal to nRT डेराइव के लिए ये चाहिए होता है हमको। Anyway, this is the distribution which is really followed by the gaseous molecules during their motion, और मोशन से ही तो हम डेराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशंस का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए जरूरी होता है, इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, नोट इट डाउन या एक फोटो ले लो। नहीं, मुझे ध्यान इसका लीजिए। नोटेड? ठीक है। Yes, sir.